Hello everyone. Welcome to yet another session of Crash Course for GATE 22 of the subject Power Systems through previous year GATE questions. We are already into the lecture 4 and today we are going to start a new topic which is power flow analysis, considering which is also known as load flow analysis. Considering its weightage since 2008, it approximately carries 20% weightage. Hence, we are going to divide this topic into two lectures. In first one, we are going to discuss construction and questions related to bus admittance matrix, which is Y bus matrix. And in next lecture, we are going to discuss formulation of load flow problem and solution of that using Gauss-Seidel and Newton-Raphson. So stay tuned for all the updates. Thanks to Alcom Institute, this initiative is taken by them. Alcom Institute is an institute just opposite to the Vishwakarma Government Engineering College Chandkheda, and working with aspirants of GATE exam, even engineering services and public sector exams of the specialization electronics, electrical and instrumentation. Not just that, various students who are looking for core concepts of core subject, they also reach out to us and we gladly work with them. Of course, we have a highly qualified, well experienced team. You can investigate more about us by visiting various Google reviews as well as our Google page. Okay, let's proceed. Talking about myself, my name is Raviraj. I completed my BTech in 2011 from Nirma University, Ahmedabad, MTech from NIT Surat in 2015, and I am pursuing my PhD, just about to finish my PhD from IIT Bombay. Talking about work experience, I have been working in an industry for approximately a year, and then since 2014 I am actively working in the in the domain of GATE coaching. I have taught various subjects in various cities and have associated with various GATE coaching institutions, naming few: GATE Forum, IC and Alcom. Without further delay, let's jump into the discussion. We are going to discuss today bus admittance matrix, which is also known as Y bus. So let's start with what is Y bus. Y bus क्या है? So basically Y bus is a matrix which relate two vectors which consist a nodal voltage and injected current at each node. So let's write that mathematical equation. So Y bus is a matrix which relate my two vectors, which are I bus and V bus, where I bus is basically vector consisting current injected at each bus. Of course, they are vectors. Let's consider n bus system. So in n bus system, my I bus vector is vector consisting current injected at each bus. Y bus will be always a square matrix of n cross n size. So y11, y12 up to y1n and so on. yn1, yn2 and ynn, multiplied with a V bus vector which consists voltages of each bus. They are also vectors. They are also phasors, right? So basically they have magnitude as well as angle, and that makes my Y bus also a complex number. We are going to see today how this matrix is constructed. So writing their size, this is n cross 1 vector, this is n cross 1 vector, and hence my Y bus is always n cross n vector. We are going to see its property in a due course time.
Okay. Now, as I have said, I bus is current injected at each bus, and V bus is voltage recorded at each bus. Voltage recorded at each bus. So my Y bus will be a matrix which relate these two vectors. Okay. Okay. Let's proceed. Now let's see how we construct Y bus. So for that, let's consider a small system of 3 bus. Fully connected 3 bus 3 line system we are going to consider. So 3 buses are connected via 3 transmission lines. Let's say this is bus number 1, bus number 2 and bus number 3. Please pay attention to this. The line connecting bus 1 and 2 is having impedance Z12. This is small z, Z23, Z13. Let's write it 13. Current injected at each bus, let's say this is I1, I2 and I3. And voltage recorded at each bus, that is V1, V2, V3. Of course, these are phasors, so a correct way to represent them is using correct notation. Z12 is also a complex number. Okay, so Z12, I'm just writing for one line. Z12 is impedance of transmission line connecting bus 1 and 2. So if Z12 is impedance, I can always find its admittance, which is small y12, and relationship between impedance and admittance is they are inverse of each other. So y12 is 1 upon Z12, and that is admittance of same transmission line. Transmission line 1 and 2, I'm writing this notation. I'm using this notation. 1-2 represents a line which is connecting bus 1 and 2. Okay. Now, I'm going to write KCL at each node. KCL at each node to get my matrix Y bus. See, Y bus क्या है? फिर से एक बार रिकॉल करो. वो I1 और V1, V2, V3 इन सबको रिलेट करता है. So let's write down KCL at node 1. Of course, this is a derivation, but ये construction बहुत important है. यहाँ पर बहुत सारे points मिलेंगे हमें जहाँ से हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे. Okay, so KCL at node 1. अगर मैं KCL लगाऊंगा तो यहाँ पर दो पार्ट करंट के हैं. एक I12 है, एक I13 है. So I1 can be represented as, let me use this. I1 is represented as I12 plus I13, and I12 is using a network analysis rules. I12 can be represented as V1 minus V2 into Y12 अपॉन Z12 लिख सकते हैं, नहीं तो इंटू Y12 लिख सकते हैं. एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना है, इसीलिए हम एडमिटेंसेस को कंसीडर करेंगे. ओके, चलो वो I13 क्या होगा? I13 बनेगा हमारा सेम V1 सिमिलर माइनस V3 into Y13. Let's rearrange these terms. So rearranging क्या कर रहा हूं मैं? V1 के टर्म्स को कलेक्ट कर रहा हूं एक साथ. तो V1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा Y12 प्लस Y13. स्मॉल वाइज है ये, विच आर एडमिटेंस ऑफ रिस्पेक्टिव लाइन.
into V1 plus minus y12 into V2, प्लीज पे अटेंशन, देखो V2 के पास y12 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस y13 into V3, ये सारे फेजर है, सारे के सारे फेजर है। सो माइनस मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों उसका रीजन बताता हूं। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, यहां से अगर हम एक्सपैंड करेंगे, इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आई एम जस्ट राइटिंग अ फर्स्ट रो जिससे एक इक्वेशन मिलेगा। सो I1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y11 v1 y12 v2, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दिमाग में करो, लीनियर अलजेब्रा, y13 v3 डॉट 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 y1n bn, क्लियर है, राइट। मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मैं सिर्फ पहला रो लिख रहा हूं उसका। सो देखो यहां पर y बस के एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये y1 क्या होगा, y1 वो होगा जो v1 के साथ मल्टीप्लाइड है, y2 वो होगा, y12 वो होगा जो v2 के साथ मल्टीप्लाइड है, राइट। सो in this equation we will get our y11 y12 and y13. So see, I'm writing those. So this is my capital Y11, नोटेशन बहुत अच्छे से यूज किया गया है, प्लीज ध्यान देना इसको, कैपिटल Y12 कैपिटल Y13, क्यों, क्योंकि V1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा वो कैपिटल Y11। सो आई एम यूजिंग दिस नोटेशन, capital Y's are entry, capital Y's are entry of Y bus and small y's are admittance of elements। मैं ये नोटेशन यूज करने वाला हूं, कैपिटल Y और स्मॉल y। कैपिटल Y एक्चुअली एंट्री है, Y बस की एंट्री, और स्मॉल y होगा एडमिटेंस ऑफ एलिमेंट, और उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें यहां से मिल सकता है। ओके, following the same procedure, now I'm directly writing I2 equation. We will get I2 as minus y12 into v1 plus y12 plus y23 into v2. You can cross check this, plus minus y23 into v3. So यहाँ पर ये एलिमेंट मिल गया मुझे y21 सॉरी y22 y23, and similar way I3 minus y13 v1 y13 plus y23 v2, oh I'm sorry, oops, y23 minus y23 v2 plus y13 plus y23 v3. So these entries are y31 y32 y33. Now you can see y12 is equal to y21, देख लो, minus y12 right. So hence my y bus will be always a symmetric matrix. Note चाहिए तो लिख लो, y bus is always a symmetric matrix if system is not having phase shifting transformer. सिस्टम में अगर फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर नहीं है तो वाई बस सिमेट्रिक रहेगा, अगर फेज शिफ्टिंग हुआ तो मेरा वाई बस सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ओके, चलो, so y bus matrix is always a symmetric matrix if it is not having a phase shifting transformer. Okay, now let's work on this y bus for a few time.
सो y बस यहां से बहुत सारे कंक्लूजन में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। y बस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस y12, y11 था y12 प्लस y13 माइनस y12 माइनस y13, this is minus y12, y12 plus y23 minus y23 minus y23 13 minus y23 y13 plus y23. So as you can see, it's a symmetric matrix. Of course, diagonal entries. अब देखो diagonal entries, diagonal entries diagonal entries is equals to summation of all admittances summation of all admittances of elements connected at respective bus. So अगर बस 1 की बात करें तो बस 1 पे जो एलिमेंट लगे हैं, देखो यहाँ पर बस 1 पे क्या क्या लगा है, यहाँ पे एक लाइन लगा है जो 1 और 2 को कनेक्ट कर रहा है और दूसरा लाइन लगा है जो 1 और 3 को कनेक्ट कर रहा है। तो बस 1 का करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसमें आएगा समेशन ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट दैट बस। याद रखना, summation of admittance, okay, and of diagonal values of diagonal entries is minus into, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस आता है एक, माइनस इंटू एडमिटेंस ऑफ लाइन connecting bus I and J, ओके बाजू में लिख लेता हूं बस I and J, ओके। सो डायगोनल एंट्रीज मान लो I ढूंढ रहे हैं हम, सो कनेक्टेड एट रिस्पेक्टिव बस I, यहां पर बस I की बात हो रही थी। अब ऑफ डायगोनल एंट्रीज उसमें मैं बोल रहा हूं YIJ जो कि होगा YJI, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। So that is minus of admittance of line connecting bus I and J. This is how we construct a Y bus. I hope this is clear. कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ओके चलो let's proceed further. Now I think this is the basic knowledge. The considered system is not having any shunt. We are going to see shunt की वजह से क्या होगा and so on. Okay, उससे पहले थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। Try to solve this question. Come on, try to solve this question. I'm waiting for 2 seconds. Pause this video, solve this question and give me the answer. I hope you have tried this. So let's solve this question. I'm just putting this question on side so that we will get a good space. I'm just reading the question once. The 3-bus network is shown in the figure below, indicating PU impedance at each element of each element. Okay. The bus admittance matrix of Y bus of the network is dash. So basically हमें इसका Y bus बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये गेट का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का है। ओके चलो बनाएंगे। तो सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज देख लो। देखो अब ऑप्शन से अगर सॉल्व करना है ना, तो देखो ऑप्शन में डायगोनल एंट्रीज सारे मैट्रिक्स में अलग अलग है, ऑलमोस्ट सारे मैट्रिक्स में। देखो डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 1 सारे अलग अलग है। तो अगर एक ही वैल्यू निकाल लिया हमें पूरा वाई बस मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम y11 निकालेंगे। तो y बस का y11 क्या होता है, मैं लिख रहा हूं एक बार, सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस
sum of all admittances connected at bus 1। ये सिंपल और आसान सा तरीका है, जल्दी से निकल जाएगा ये क्वेश्चन, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब एडमिटेंस का सम करना है, तो बस वन को हाईलाइट करो, ये बस 1 है। बस 1 पे क्या एडमिटेंस लगा है, तो देखो बस 1 पे लगा है एक J0.1। चलो ये तो Z दिए है, Z1 Z12 दो ही एलिमेंट लगे हैं, बस 1 पे दो ही एलिमेंट लगे हैं, तो Z1 की वजह से जो एडमिटेंस होगा वो Y1, और सम करना है Z12 का एडमिटेंस Y12। अब एडमिटेंस है तो भाई Y1 क्या होगा, 1/J.1, डायरेक्ट है, कोई झंझट नहीं है यहाँ पे, 1/J.2। इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, -J10 -J5, सो ये बन गया -J15। ये Y11 बन गया। अब देखो एक ही ऑप्शन है जहां पर ये मैच कर रहा है, ठीक है, ओके। चलो जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी आंसर है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अब जल्दी से मुझे बताओ Y12 क्या होगा, Y12 क्या होगा सर, Y12 होता है माइनस स्मॉल y12, जो लाइन है कनेक्टिंग 1 2 उसका माइनस एडमिटेंस, तो यहां पर -1/Z12, Z12 दे दिया है J.2, माइनस ऑलरेडी आ गया है, तो ये बन जाएगा J5। तो देखो J5, J मल्टीप्लाइड कॉमन लिख लिया है ऑप्शन में, बी इज करेक्ट आंसर। एक और मैं चेक करके बताता हूं, एक और चेक करेंगे, जल्दी से क्रॉस चेक करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। Y33 चेक करेंगे बच्चा, Y33 चेक करेंगे। सो Y33 मतलब डायगोनल एलिमेंट, एडमिटेंस कनेक्टेड एट बस 3 सबका सम। तो यहां पर देखो एक Z23 कनेक्टेड है और Z3 कनेक्टेड है, Z30 बोल लो, शंट है तो, ठीक है। तो भाई Y3 प्लस Y23, अब Y3 होगा 1/Z3 प्लस 1/Z23। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करोगे सब क्लियर हो जाएगा। 1/Z3 1/J.1, Z23 -J.8। अब कैपेसिटेंस है तो उसका तो रिएक्टेंस दिया है, इंपीडेंस दिया है, कैपेसिटेंस का इंपीडेंस तो नेगेटिव ही होगा, उसका एडमिटेंस प्लस हो जाएगा, 1/J है इसलिए, ओके। तो देखो ये -J10, ये माइनस था, 1/-J इज प्लस J, 1/0.08। निकाल लो एग्जैक्ट नंबर निकाल लो, सो ये बन जाएगा J2.5। चेक कर लो, देखो मैच कर लिया। सो करेक्ट आंसर इज बी, बट दिस इज हाउ यू शुड वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाई बस। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो वाई बस यहाँ पे आसान हो गया है, बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वे, ओके। चलो ये क्वेश्चन निकालो, जल्दी से क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकालो। Network shown in the figure has impedance in PU indicated. The diagonal element Y22 of bus admittance matrix Y bus of the network is dash. जल्दी से सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो, मैं थोड़ी देर में इसको सॉल्व करूंगा। ओके आई एम सॉल्विंग, चलो। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है बच्चा, बहुत सारे बच्चे इसको निकाल लिए होंगे, मुझे बिल्कुल पता है। देखो 2-2 मार्क में आते हैं ये क्वेश्चन। सो Y22 निकालना है, सिंपल है सर, समेशन ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट बस 2, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर देखो Y12 एक लगा है, एडमिटेंस ही निकालना है, समेशन करना है बस। एक है Y23 और एक शंट लगा है 2 और 0 के बीच में, तो उसको बोल लो Y2। क्लियर है। सो Y12 क्या है भाई, 1/J.1, Y23 क्या बनेगा 1/J.1, Y2 क्या बनेगा 1/-J20, कैपेसिटर है तो माइनस एडमिटेंस रहेगा, इंपीडेंस रहेगा तो एडमिटेंस, सो J10 -J10 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 -J10, this is plus J 0.8,
0.05. So minus J20 प्लस J 0.05, बच्चा जल्दी से बता दिया होगा 19.95 इज करेक्ट आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झोल झमेला नहीं है. क्लियर है? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करो. पॉज द स्क्रीन, इस क्वेश्चन को निकालो. देखो आसान सा टॉपिक है और ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं. जल्दी से निकाल लो इसको. Okay, I'm starting the solution. This is a good question. चलो निकालते हैं. क्या है? The Y-bus matrix of a 4-bus system given per unit. Buses having shunt elements are dash. अब बच्चा यहाँ पर हमें पूछा गया है कि शंट कहाँ लगे हुए हैं. तो देखो सीरीज जो एडमिटेंस जो ब्रांच लगी थी ऑफ डायगोनल एंट्रीज सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या बताता है? देखो ये ऑफ डायगोनल क्या है वाई बस का, ये है y22 विच इज माइनस y, दिस इज y12 कैपिटल y12 जिसकी वैल्यू है J2, बट ये बराबर होता है माइनस स्मॉल y12, माइनस होता है, याद करो. तो ये क्या होगा? एक सीरीज लाइन का जो लाइन 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है उसका Z12 दे देगा हमें. एडमिटेंस दे मिल जाएगा, इंपीडेंस मिल जाएगा. क्लियर है? लेकिन 1 क्या होता है? 1 होता है समेशन ऑफ y12 y13 y14 प्लस y1. ये है शंट. जो भी शंट एलिमेंट लगा होगा जो दो बस के बीच में कनेक्टेड नहीं है वो सिर्फ डायगोनल एंट्री में दिखेगा. बाकी सब जगह तो माइनस हो जाएगा. माइनस y12, ये होगा माइनस y13, ये होगा माइनस y14. बेसिकली आई एम रिफरिंग टू द डेरिवेशन. बेसिकली मान लो यहाँ पे शंट होता, अगर शंट होता तो हमें यही मिलता वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में. तो ये नोट भी लिखो. शंट्स कनेक्टेड इन सिस्टम, शंट्स connected in system will only appear in diagonal entries of Y bus. क्योंकि जब हम डायगोनल एंट्री बनाते हैं तो सबका सम करना पड़ता है सारे एडमिटेंस का, तो उसमें शंट भी आ गया. लेकिन जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो तो सिर्फ सीरीज लाइंस को ही कंसीडर करते हैं. तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रो वाई बस के फर्स्ट रो का सम करूं तो सम की वजह से क्या होगा? y12 कैंसल, y13 कैंसल, सिर्फ y1 मिलेगा विच इज सम ऑफ फर्स्ट रो ऑफ y बस. सो बेसिकली जब मैं y बस की रो का सम करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी किसकी? उस बस पे कनेक्टेड शंट की. देखो अगर मैं थर्ड रो का सम करूं तो मुझे y3 मिलेगा, y13 कैंसल, y23 कैंसल, तो ये मुझे मिलेगा शंट कनेक्टेड एट बस 3. शंट कनेक्टेड एट बस 3. सो बेसिकली अगर मुझे शंट की वैल्यू चाहिए क्या करना है? रो का समेशन लेना है. सो क्वेश्चन में अगर देखें तो पहली रो का एडिशन 4.5 माइनस 5 इट इज माइनस 0.5. सेकेंड रो का समेशन 4 5 6 माइनस 4 माइनस 1.5 नॉन जीरो. दो ये थर्ड रो का समेशन 5 4 9 इसका समेशन 0.
लास्ट रो का समेशन 4 4 8 0। जिस रो का समेशन 0 आया मतलब वहां पर कोई शंट कनेक्टेड नहीं है, राइट। जिस रो का समेशन नॉन जीरो आया वहां पर शंट कनेक्टेड है। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कहां कहां शंट कनेक्टेड है, बस नंबर 1 पे और बस नंबर 2 पे। 3 और 4 पे समेशन 0 आया मतलब कोई शंट कनेक्टेड नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नोट लिख लो, एड रो एलिमेंट्स of Y bus that will give you admittance, total admittance, okay, admittance of shunt element। सम ऑफ, अगर एक से ज्यादा शंट है तो सम की तरह मिलेगा हमें, सम ऑफ एडमिटेंसेस ऑफ शंट एलिमेंट्स कनेक्टेड एट दैट बस। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं वाई बस कंस्ट्रक्शन एज फार एज ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज कंसर्न। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, फॉर पावर फ्लो एनालिसिस, ये वाई बस उसी के लिए बनाते हैं, उसका स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा। फॉर पावर फ्लो एनालिसिस ट्रांसमिशन लाइन्स आर मॉडल्ड as nominal pi model। अगर शॉर्ट लाइन है तो उसमें चार्जिंग इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ सीरीज एलिमेंट लगेगा। लेकिन अगर मीडियम लाइन है तो उसका शंट चार्जिंग एडमिटेंस कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसको हम नॉमिनल पाई से मॉडल करेंगे। क्लियर है? सो नॉमिनल पाई रिविजिट करो, नॉमिनल पाई मॉडल क्या होता है, सीरीज एडमिटेंस और शंट एडमिटेंस का हाफ, ये होगा y dash by 2 y dash by 2 and this is my series admittance, series impedance। so एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इस तरह से मॉडल होती है। अगर ये J और I और J बस के बारे में बात करें तो ये होगा ZIJ, ये ith बस पे और ये jth बस पे। सो बेसिकली एक लाइन का चार्जिंग एडमिटेंस आधा बस I की तरफ शंट की तौर पे लगेगा, आधा बस J की तरफ शंट के तौर पे लगेगा। अंडरस्टूड? तो अगर Y बस में एक ही, चलो थ्री सिस्टम बनाया ना, 3 बस सिस्टम, ये 3 बस सिस्टम वापस वही कंसीडर कर रहा हूं मैं, इसका Y बस हमने बनाया था। उसमें मान लो लाइन 1 2 इज मॉडल्ड एज पाई, बाकी दोनों शॉर्ट लाइन है। एक लाइन 1 2 जो है वही लॉन्ग लाइन है, यही लॉन्ग लाइन है, लेट सपोज। तो वाई बस में क्या बदलाव आएगा, तो पहला वाई बस था ये Z12 तो वही रहेगा, Z13 Z23, ये शंट जो है उसका इफेक्ट अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको मैं बोल रहा हूं Y12/2 Y12/2 डैश। चार्जिंग है ना, ये 1 2 लाइन का चार्जिंग एडमिटेंस वो हाफ हाफ लगता है। तो बस 1 पे अब कनेक्टेड शंट है, बस 2 पे भी कनेक्टेड शंट है, तो मेरा वाई बस कैसे बदलेगा, तो देखो डायगोनल एंट्री एडमिटेंसेस, समेशन ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड एट बस 1, तो एक लाइन कनेक्टेड है 1 2, दूसरी लाइन कनेक्टेड है 1 3 और शंट पहली 1 2 डैश बाय 2। बाकी ऑफ डायगोनल एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शंट कनेक्ट होगा वो सिर्फ डायगोनल में ही दिखेगा। देख लो, बस 2 एडमिटेंस का समेशन, सो y12 y23 प्लस y12 डैश बाय 2, आधा बस 1 की तरफ, आधा बस 2 की तरफ। क्लियर है? बस 3, यहां पर बस 3 पे कोई शंट नहीं कनेक्टेड है, तो बस 3 वही रहेगा -1 3
-2 3, ये होगा y13 प्लस y23। क्लियर है? चलो अब अगर मैं 13 को भी चार्जिंग मॉडल करता हूं, 13 को चार्जिंग मॉडल करता हूं, सो y'13/2 y'13/2, तो ये 1 और 3 के डायगोनल में ही दिखेगा। देखो क्लियर है? सो चार्जिंग एडमिटेंस इस तरह से मॉडल होता है अपने वाई बस कंस्ट्रक्शन में। बेसिकली जो शंट कनेक्टेड है वो बस 1 और 3 की तरफ कनेक्ट होगा, आधा आधा कनेक्ट होगा लाइन का। तो वहां से क्वेश्चन निकला है, चलो सॉल्व करेंगे इसको। रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज दिस वीडियो, आई एम वेटिंग फॉर 2 seconds। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व दिस। बहुत आसान क्वेश्चन बनाएंगे इसको, बहुत आसान है ऑलरेडी। लेट मी शिफ्ट इट। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ अ 3 line system, y बस दे दिया है ऑलरेडी। If each transmission line between two buses is represented by an equivalent pi network, so long transmission line है equivalent pi network, ठीक है। Magnitude of shunt susceptance of line connecting bus 1 and 2, बस 1 और 2 के बीच का लाइन का शंट ससेप्टेंस। तो देखो सबसे पहले तो कौन कौन सी मॉडल शंट मॉडल किया गया है वो देखो। अगर ऐड करूं, मैं रो वाइज ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सारे शंट कनेक्टेड एट बस 1, तो ये 15 - 2 -j2। और बस 1 पे कौन कौन सा शंट कनेक्टेड होगा, एक 1 2 का और एक 1 3 का हाफ। क्लियर है? 1 2 का हाफ, 1 3 का हाफ। बस 1 पे ये दो लाइन के ही शंट कनेक्टेड होंगे। -j2 एडिशन, ये एडमिटेंस है। बस 2 पे कौन कौन से कनेक्टेड होंगे, 1 2 का हाफ और 2 3 का हाफ। और लाइन और थर्ड रो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, थर्ड रो भी -j2। और यहां पर कौन कौन से कनेक्टेड होंगे, 1 3 का हाफ, 2 3 का हाफ। सो बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया। 3 इक्वेशन छोड़ो, हमें तो सिर्फ y12 ही चाहिए, हमें तो सिर्फ y12 ही चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो ये है इक्वेशन नंबर 3, पहला इक्वेशन नंबर 1, दूसरा इक्वेशन नंबर 2, एड इक्वेशन 1 and 3, 1 and 2। so adding इक्वेशन 1 and 2। सो भाई इक्वेशन कैसे मिले हैं, इक्वेशन मिले हैं हमें रो ऐड करने से। सो ये 1 और 2 ऐड किया तो -j4 दैट इज इक्वल्स टू y12 डैश डिवाइड बाय 2 पूरा मिल जाएगा, प्लस y13 डैश बाय 2 प्लस y23 डैश बाय 2। अब यूजिंग इक्वेशन 3, y13 dash by 2 y23 dash by 2 is already -j2, so y12 dash डायरेक्ट मिल जाएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं उसको, या राइट हैंड साइड देख लो, ये है -j2, तो सामने जाके वो प्लस बन जाएगा। सो आंसर इज -j2 y12 डैश। ये क्या बना, susceptance, shunt susceptance of line connecting bus 1 and 2, so answer is 2, answer is 2, b आंसर है। क्लियर है? चलो जिसका मैच हुआ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसान सा टॉपिक है। एक बार ऐसे क्वेश्चन निकल गए मतलब अब गलती नहीं होगी। चलो ये क्वेश्चन निकालो जल्दी से ये क्वेश्चन निकालो। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर अ पावर सिस्टम, बस एडमिटेंस दे दिया है। There is a transmission line connected
connected between bus 1 and 3 which is represented by circuit shown in figure. अब 1 और 3 की लाइन का मॉडल दे दिया है. If this transmission line is removed from service, what is the modified bus admittance matrix? Okay, try to solve this question. Pause this video. I'm waiting for few seconds. All right, चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो यहां से बहुत सारे हिंट मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए हिंट मिलेगा. सी, जब एक लाइन रिमूव करेंगे 1 और 3 के बीच की लाइन रिमूव करेंगे तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट चेंज होंगे. अगर 1 और 3 के बीच का लाइन रिमूव कर दिया मतलब इंफिनिट इंपीडेंस ऐड किया दोनों के बीच में, मतलब जीरो एडमिटेंस. तो 1 और 3 का एडमिटेंस ये जीरो हो जाएगा नई मैट्रिक्स में, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी जीरो हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ये एंट्री है y13 और ये एंट्री है y31. अब लाइन ही नहीं रहा तो उसका एडमिटेंस जीरो बनेगा. इंपीडेंस इंफिनिटी, एडमिटेंस जीरो. सो ये दोनों पहले तो जीरो होने चाहिए. तो देखो सारे आंसर में एक्सेप्ट डी, सारे आंसर में ये जीरो है, तो नया वाई बस का ये एंट्री तो जीरो कंपलसरी होना चाहिए. इसके अलावा अब मेरा डायगोनल में एंट्री भी चेंज होना चाहिए. क्यों चेंज होना चाहिए? डायगोनल एंट्री में क्या क्या होगा? -y13 तो होगा ही, और उसका शंट आधा शंट भी तो कनेक्टेड होगा, राइट? तो पहले मैं y11 लिखता हूं, ओरिजिनल y11 इक्वेशन के फॉर्म से. y11 में क्या होगा? y12, y13, y12 डैश बाई 2, y13 डैश बाई 2. ठीक है, y11 इससे बना होगा भाई. अब इसमें y13 जीरो बन रहा है, ये हटा रहे हम, और ये भी हट जाएगा. सो बेसिकली मुझे यहां पर ऑलरेडी ये -j39.9 दे दिया है. y12, y13, y12 डैश बाई 2, y13 डैश बाई 2. ठीक है, इसमें से मुझे इन एलिमेंट्स को हटा देना है क्योंकि अब ये ट्रांसमिशन लाइन रहा ही नहीं. तो मैं क्या करूंगा? इनकी वैल्यूज सामने सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तभी तो मेरा नया y11. Therefore y11 डैश क्या बनेगा? वो उसमें अब सिर्फ y12 होना चाहिए और y12 डैश बाई 2 होना चाहिए क्योंकि लाइन 13 निकल रहा है. तो ये वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? इन दोनों को अगर मैं -j39.9 से सब्ट्रैक्ट कर लूं, सामने चला गया, देख लो, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी. अब सवाल है y13 का लाइन, y13 का वैल्यू क्या है? तो बच्चा वो तो मॉडल दे दिया है, ये मॉडल दे दिया है, बस इसको यूज कर लो, है कि नहीं? आसान है. तो देखो -j39.9, y13 का वैल्यू है 1/z13 और y13 डैश अब सब्सटेंस दिया है, दोनों तरफ सेम लगेगा, तो ये ऑलरेडी डिवाइड बाय 2 करके दिया है. सो 0.05 j, और Z13 क्या होगा? 0.05 रिएक्टेंस है, उसका इनवर्स. सो दिस इज -j39.9, j 0.05 उसका इनवर्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस j20 माइनस j 0.05. सो पहले तो 20 निकालो, -j90, यहाँ ब्लॉक हो रहा होगा, मैं ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं. आई एम वर्किंग आउट ओवर हियर. ओके, मैं बाजू में वर्कआउट कर रहा हूं यहाँ पे. देयरफॉर y11 डैश नए का y बस का डायगोनल एंट्री निकाल रहे हैं हम, दैट इज -j19.9 माइनस j 0.05, ये माइनस हो जाएगा. सो आंसर इज y11 डैश
सिर्फ सी में मैच कर रहा है। ओके देखो डायगोनल सेकंड तो बदलेगा नहीं और थर्ड में भी सेम इफेक्ट मिलेगा, थर्ड में भी सेम इफेक्ट मिलेगा। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। बट बहुत बारीकी से यहां पर प्लस माइनस ठीक से करना पड़ेगा। सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो कौन से इक्वेशन से निकाला? ओरिजिनल डायगोनल एंट्रीज। अब उसमें से एक लाइन रिमूव हो गया तो मुझे दो एंट्रीज को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सामने लेके जाके माइनस कर दूंगा। बस मैथमेटिकली बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे गलतियां होती है कहां, बच्चा जे नहीं लगाता है वगैरह वगैरह। अगर जे नहीं लगाया तो माइनस जे, गलती हो जाएगी प्लस माइनस में। ठीक है, तो बारीकी से प्रोसीड करना है। ये ससेप्टेंस दिया है ऑलरेडी, कैपेसिटिव ससेप्टेंस प्लस जे। ओके सो मैं साइड में लिख रहा हूं, देखो y13 डैश बाई 2 इज ऑलरेडी j 0.05, ससेप्टेंस दिया है डायरेक्ट, और कैपेसिटिव ससेप्टेंस प्लस जे होता है ससेप्टेंस। ओके और Z13 दे दिया है J 0.05, तो 1 अपॉन Z13 क्या होगा, माइनस J20, और माइनस माइनस प्लस होके प्लस J20 बन जाएगा। ओके ग्रेट, आसान था मुझे लगता है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन निकालिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से एक क्वेश्चन निकालिए। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। all right, let's solve this question. क्वेश्चन है, 3-bus power system consists of 3 transmission line. The bus admittance matrix is given. If shunt capacitance of all transmission line is 50% compensated, the imaginary part of third row third column element of bus admittance matrix. तो बेसिकली हमें पहले तो Y33 निकालना है। तो पहले ओरिजिनल Y33 क्या होगा, Y13 होगा यहाँ पे, Y23 होगा यहाँ पे Y23 डैश बाई 2 होगा और Y13 डैश बाई 2 होगा। ठीक है, दोनों का आधा आधा, दोनों लाइन का आधा शंट ससेप्टेंस होगा, एडमिटेंस होगा और लाइन का एडमिटेंस होगा। अब क्या बोला है, इसकी वैल्यू दे दी है -j8। अब पूछा है शंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल ट्रांसमिशन लाइन इज 50% कंपनसेटेड। 50% कंपनसेटेड मतलब ये रिड्यूस हो गए, Y11 आधे आधे रिड्यूस हो गए। पहले तो J8 है, अब आधा आधा 50% कंपनसेटेड। तो अगर पहले इसका वैल्यू, हम एक्चुअली इसके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं निकालने की जरूरत है कि नहीं। तो Y13 तो मिल जाएगा हमें पहले, तो ये -j8 है। ओके पहले Y13 की वैल्यू निकाल लो। सो Y13 कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स में कैपिटल Y13 इज J4 माइनस स्मॉल y13 इज J4, therefore Y13 इज -j4। सो ये होगा -j4, Y23 होगा -j5 प्लस Y23 डैश बाई 2 Y13 डैश बाई 2 एंड दैट इज -j8। ओके अब चेंज हो रहा है कितना, आधा आधा चेंज हो रहा है। लाइन तो चेंज नहीं बदल रहा है, लाइन तो बदल नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चा, Y33 डैश दैट विल बी Y13 तो वैसा ही रहेगा, Y23 वैसा ही रहेगा, और Y23 डबल डैश ये आधा हो रहा है, प्लस दोनों ये आधा होने की वजह से डिवाइड बाय 4 लिख रहा हूं मैं। तो यहां से ऊपर वाले इक्वेशन से, ब्लैक इक्वेशन नंबर 1 से मुझे Y23 डैश प्लस Y13 डैश मिल जाएगा। निकाल लो पहले कितना आ रहा है, ये होगा -9, आगे जाएगा J2J, therefore Y23 डैश प्लस Y13 डैश इज 2J या J2।
कैसे निकाला? देखो ये -9 है, सामने जाएगा +9, +9 -8 +1, सो +j2 मल्टीप्लाई हो गया। सो यहाँ वैल्यूज रख दो सारी, -j4 -j5 प्लस 2j/4 एंड दैट इज 0.5j। सो ये -j9 प्लस j0.5 दैट इज -j8.5। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। ये डिवाइड बाय 4 क्यों आया बच्चा? क्योंकि अब वो आधा हो चुका है, 50% कंपनसेटेड। क्लियर है? चलो, सो सिंपल इक्वेशन लगाना है बस। डायगोनल एंट्रीज मतलब एडिशन ऑफ ऑल एडमिटेंसेस। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एनर्जी बनाए रखो। A 3-bus power system shown in figure below where the diagonal element of y bus are diagonal element great y element diagonal दे दिया है और शंट दिखाया नहीं है। पर यूनिट वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। सो इम्पीडेंसेस पूछे है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। तो अब देखो इम्पीडेंसेस पूछे है और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज दी है, तो y11 इसको जगह बना लेता हूं मैं। चलो, ज्यादा जगह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। y11 इज -j12 और इक्वेशन के मुताबिक ये होगा y12 प्लस y13। y22 या हाँ चलो y22 -j15 और ये हो जाएगा y12 प्लस y23 और y33 -j7 ये बनेगा y13 प्लस y23। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें हमें क्या चाहिए, बेसिकली पी क्यू आर चाहिए। ओके, सो y12 निकाल लेते हैं। 3 इक्वेशन है, हम y12 निकाल लेते हैं। कैसे? इक्वेशन 1 2 3, तो ऑपरेशन करते हैं 1 + 2 करते हैं। पहले 1 + 2 कर लेते हैं। 1 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर 15 12 27 -j27 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y12 प्लस y13 प्लस y23। अब इक्वेशन 3 यूज कर लेते हैं। y13 और y23 -j7 है, -j7 है। So this is -j7 from equation 3। अगर इसको मैं सामने लेके जाऊं तो +j7, so 2y12 is -j20, therefore y12 is -j10। अब y12 क्या होता है? एडमिटेंस है, 1-2 लाइन का एडमिटेंस। अगर उसका इंपीडेंस jq है, इंपीडेंस jq है, तो उसका एडमिटेंस क्या होगा? 1/jq। सो 1/jq इज -j10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो q क्या बन गया बच्चा? 0.1। q 0.1, सिर्फ बी ऑप्शन वैलिड है। यहाँ पर PQR बदल दिया है, इसलिए ध्यान लगाना। ओके, चलो, अगर क्रॉस चेक करना है कि बी सही है तो और किसका निकालते हैं? पी भी निकाल लेते हैं। पी निकाल लेते हैं। चलो, तो पी निकालने के लिए हमें चाहिए होगा y23। अगर y23 चाहिए तो 2 और 3 को ऐड करो और 1 को सब्स्टिट्यूट करो। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो देखो इक्वेशन 2 3 जल्दी से बता देता हूं। इक्वेशन 2 + 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, साइड में लिख रहा हूं, -j22 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y23 और y12 और y13 मिलेगा, वो होगा -j12। सामने चला गया तो 2y23 इज -j10, तो y23 बन गया -j5। अब y23 है 1/jp,
माइनस J5, तो P क्या बन गया, देखो माइनस माइनस तो जे स्क्वायर इज माइनस और माइनस प्लस 1/5.2 मैच कर गया, बी इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अब तक जो हमने डिस्कस किया है उससे ये क्वेश्चन निकलेगा, मैं आपको बता देता हूं। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज योर वीडियो, सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो नॉलेज अभी तक हमने डिस्कस किया है वही यूज होगा इसको सॉल्व करने में। जल्दी से, ये अनदर टाइप ऑफ वैरायटी। चलो all right, let's solve this question quickly. Let's solve this question. So question statement है 1000 क्रॉस 1000 बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, 1000 क्रॉस 1000 bus admittance matrix that implies total buses are 1000 or element 1000 cross 1000. Okay, 8 has 8000 non-zero element. So total non-zero, मैं डेटा ही लिख रहा हूं अभी तो, total non-zero elements, these are 8000. अब इन नॉन जीरो एलिमेंट के दो हिस्से लगा सकते हैं, एक डायगोनल एंट्रीज, एक डायगोनल एलिमेंट, एक ऑफ डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स, और दूसरा सेक्शन है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब एक पावर सिस्टम के लिए, एक पावर सिस्टम के लिए डायगोनल एलिमेंट्स कभी जीरो नहीं होंगे। अगर इंटरकनेक्टेड हुआ मतलब एटलीस्ट एक लाइन तो एक बस के साथ कनेक्टेड है तो उसका एडमिटेंस तो आएगा ही आएगा। तो इसको देखते हुए डायगोनल एलिमेंट्स कभी जीरो नहीं होंगे। सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट, बस में 1000 बस्ट है तो डायगोनल एंट्रीज भी 1000 होंगी, 1000 क्रॉस 1000 में 1000 एंट्रीज होती है डायगोनल। सो नॉन जीरो, इसमें से 1000 तो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, तो बाकी बचे कितने, 7000। टोटल नॉन जीरो एलिमेंट में 1000 डायगोनल है, 7000 ऑफ डायगोनल है। ओके, अब जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है, जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स याद करो, एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन, अगर y12 है तो 1 और 2 के बीच का एडमिटेंस, 13 है तो 1 और 3 के बीच का एडमिटेंस। ओके, अगर मैंने एक लाइन लगाई तो ऑफ डायगोनल कितने नॉन जीरो बनेंगे, 2। देख लो कैसे, अगर y बस है उसमें मान लो मैंने एक लाइन लगाई 5वें बस और 7वें बस के बीच में, तो एक तो 5-7 वाला एंट्री, 5-7 वाला एंट्री, 5-7 वाला एंट्री नॉन जीरो बनेगा, और 7-5 वाला एंट्री भी नॉन जीरो बनेगा, 7-5 वाला एंट्री भी नॉन जीरो बनेगा। यहां पर 7-5 एक लाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 5-7 वाला एंट्री भी नॉन जीरो बनेगा, 7-5 वाला एंट्री भी नॉन जीरो बनेगा। वन लाइन, वन ट्रांसमिशन लाइन में 2 elements non-zero, 2 off diagonal, make 2 off diagonal elements, 2 off diagonal elements नॉन जीरो। एक लाइन लगाई तो ऑफ डायगोनल 2 नॉन जीरो बनेंगे, अगर एक हटाई, जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा था, अगर एक लाइन हटाई तो 2 एंट्रीज नॉन जीरो बन जाएंगी। सिमिलर वे उसका उल्टा प्रोसेस हो रहा है, अगर एक लाइन लगाई तो वो दोनों ही नॉन जीरो बनेंगे। क्लियर है? तो यहां पर ऑफ डायगोनल एंट्रीज, एक लाइन की वजह से 2 नॉन जीरो, तो 7000 नॉन जीरो है तो कितनी लाइन चाहिए, वही तो पूछा है, राइट?
So total line required lines are non-zero elements divided by 2, 3500. देखो बच्चा, बहुत सारे लोग यहाँ इक्वेशन से याद करते हैं। इक्वेशन याद मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। लॉजिक से बहुत सिंपल है। ओके, सो आई होप दिस इज इट एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं। देखो रिसेंट क्वेश्चन है, इसको चेक कर सकते हैं अपने लॉजिक से, अपने कॉन्सेप्ट से कि चेक सही सीखा है कि नहीं सीखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पावर फ्लो और या लोड फ्लो और उसका सॉल्यूशन, गॉस सीडल और न्यूटन रैप्सन। ठीक है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरे और सब्जेक्ट भी लेके आ रहे हैं हम, तो उनके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, सो विद दिस टेक केयर और जमे रहिए, लगे रहिए, मेहनत जम के करनी है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अगले सेशन में मिलते हैं। या टेक केयर।